हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कॉर्टेक्स क्लासेस. आई होप all are doing well and fine. So guys, I'm back with the next video of pre-RMO 2018 solutions. So in this series we are solving pre-RMO and IUQM previous year questions, right? So that you can get help from it. So exam is coming on 7th September, right? I hope all of you are preparing for it properly and aggressively. Okay, मेहनत कर रहे हैं आप, I hope. Okay, so guys, today we are going to see the last question of pre-RMO 2018. So it is the last question, so then we'll moving on to the next year, right? So with this video we'll be completing two complete years, like 2017 and 2018 के questions solve हो जाएंगे, right? So guys, again I'll just try want to request you guys to, before beginning, that please solve the question beforehand, और साथ साथ में please solve करिए, because बिना आपके solve के, if you just watch the video it will not benefit you that much. Okay, it will only give you a fake confidence कि हाँ कर तो लिया, लेकिन but questions आप actually solve नहीं कर पाओगे ऐसे questions आएंगे तो. So do make it a point कि आप खुद से साथ में solve करो. Okay, and before beginning guys, I'll just like to request you guys, if you have any friends जो maths olympiad के बारे में interested हैं और पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ते हैं, so please recommend our channel to them so that they can also get benefit from it. Okay, so they should also get some benefit out of it, right? All right, so let's begin guys. Let me show you the question. Okay, all right guys, so this question is based on number theory plus polynomials का mixture है कुछ. We'll see, it is more of on the side of number theory, right? Let's see, but not that difficult guys, easily doable है, देखते हैं. So it's given that if let p of x, एक polynomial दिया हुआ है a naught plus a1x plus a2x square and so on, be a polynomial in which ai, जो coefficients हैं basically, right, for all terms the coefficient जो ai हैं, right, is a non-negative integer, right? They are non-negative integers. Non-negative integers for each I belonging to 0, 1, 2, 3, 4, 5, okay, up to n. So basically they mean कि every variable, every coefficient a1, a0 सब क्या है? They are greater than equal to 0, right? I'll write here. All of ai are greater than equal to 0. And they are natural numbers basically. You can say guys कि ai's जो values हैं, they belong to whole numbers, right? They can only take 0 or positive values, positive integers values. राइट, ये हमें मालूम हो गया. नाउ व्हाट इज गिवन इज गाइज, हमें दिया हुआ है p ऑफ 1 4 है एंड p ऑफ 5 इज 136. लेट्स सी हाउ वी कैन यूज इट. ओके, ऑल राइट. तो गाइज व्हाट इज p ऑफ 1? सी, p ऑफ 1 वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या मिलेगा? a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू an. सभी वेरिएबल्स में x को आपने 1 डाल दिया, सो दैट इज गिवन टू अस कि इसकी वैल्यू 4 है, राइट? सो नाउ वी कैन गाइज, यहां से हम एक बहुत इंटरेस्टिंग आउटकम ले सकते हैं, और यू कैन से वी कैन मेक अ वेरी गुड डिडक्शन हियर. तो गाइज देखो, सभी जो ए नॉट ए वन ए टू सब जो कोफिशिएंट्स हैं, ये सभी क्या है? 0 या उससे बड़े हैं, और उनका सम सबका मिला के 4 आ रहा है, राइट? सो डोंट यू थिंक कि कोई भी वैल्यू इसमें से 4 से बड़ी तो हो नहीं सकती ना? नो कोफिशिएंट ऑफ ऑल दीज कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. यू कैन से ग्रेटर देन 4 नहीं हो सकता, याद रादर ये बोल सकते हैं 4 के इक्वल तो हो सकता है, बाकी सब 0 हो सकते हैं, बट एटलीस्ट वी कैन से कि 4 से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, ये तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि कोई भी नंबर नेगेटिव तो है नहीं कि 4 से बढ़ा देंगे तो उसको काउंटर कर दे कोई, नेगेटिव में बैलेंस कर सके, है ना, कि वापस सम 4 हो सकता है. सिंस एवरी वेरिएबल, एवरी कोफिशिएंट इज 0 और ग्रेटर, है ना, 0 से या उससे बड़ा है, नॉन नेगेटिव है, सो दैट इंप्लाइज all the values of ai, जो ये वेरिएबल्स हैं, these are less than equal to 4. this is a very important डिडक्शन हेयर, है ना? तो कोई भी वेरिएबल आपका जो है गाइस, दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 4. 4 से बड़ा नहीं हो सकता, इट हैज टू बी 4 और लेसर, राइट? आई होप दिस मच इज क्लियर, क्योंकि सबका सम 4 आ रहा है. ओके, नाउ लेट अस सी द सेकंड एक्सप्रेशन, p ऑफ 5, राइट? सो व्हाट इज p ऑफ 5? दैट इज गोइंग टू बी a0 प्लस 5a1 plus 5 square a2 and so on. Okay, I'll write some terms here.
then 5 cube A3 plus 5 power 4 A4 एंड चलो एक और लिख देता हूँ गाइस, you'll get the concept why I'm writing all these, तो थोड़ा better understanding के लिए. Then next is 5 power 5 A5 and so on till AN, right? So 5 power n AN. The value is 136. So guys, now one more thing. पहली बात, हमने देखा कि इन सब पावर्स का सम क्या आ रहा है, 136 आ रहा है. Now see these guys, 5 power 4 कितना होता है, 625. So you see कि A4 की वैल्यू 1 या उससे बड़ी तो हो नहीं सकती है, राइट? बिकॉज इफ A4 itself is 1 और ग्रेटर, तो सिर्फ ये वाली टर्म को ही अगर हम देखें, दिस विल एक्सीड 136 एटलीस्ट, इजीली एक्सीड कर जाएगा ना. 5 power 4 is 625. So 625 into A4, A4 is 1 और ग्रेटर, लेट्स से 0 नहीं है, 1 या 1 से बड़ा है, तो क्या होगा, यही अकेला एक टर्म 136 को फार एक्सीड कर जाएगा. So and same is true for all the remaining terms after that as well. कि 5 की पावर 4 या उससे बड़े जो टर्म्स है गाइस, द पॉइंट इज ऑल द टर्म्स विद द डिग्री ऑफ 5 4 और ग्रेटर देन 4, जहां पे 5 की पावर्स 4 या 4 से बड़ी हैं, सो वो सारे टर्म्स का कोफिशिएंट जो है इट हैज टू बी 0. ऑल दीज टर्म्स, फॉर द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल दीज टर्म्स, लेट मी राइट. So guys, not A naught, sorry. So A4 equal to A5 equal to A6 up to AN. Okay, all of these variables have to be 0, right? I hope this thing is clear. Because कोई भी एक वेरिएबल अगर 0 से बड़ा हो गया, 1 तो होएगा ही, मिनिमम 1 होना पड़ेगा एटलीस्ट, and that value itself will be greater than 136, right? So due to this reason, all these terms have to be 0. So guys, now we can see our p of x has narrowed down. हमें पता लग गया p of x थोड़ा छोटा तो हो गया ना, अपने को प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं हम. So that means what? P of x is equal to a naught plus a1x. rather इसी p of 5 को देखते हैं, हमारी इसी इक्वेशन को देखते हैं गाइस, ठीक है? So what is now my p of f5 जो रिड्यूस हो गया है, we don't need to write p of x yet. तो गाइस हमारी इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो गई है, सिंप्लीफाई हो गई है. a naught plus 5a1 plus 25a2 plus 125a3. This is equal to 136, right? I hope this much is clear यहाँ तक. So now guys, very interestingly, now keep this thing in mind guys, each of ai's are less than equal to 4, कोई उससे बड़ा नहीं है, right? So very interesting guys, हम क्या कर सकते हैं इसका, now we can make use of congruent modulo because we know ai cannot be greater than equal to 4. कोई भी वैल्यू इसमें कोफिशिएंट जो है 4 या 4 से बड़ा नहीं हो सकता, सॉरी 4 से बड़ा नहीं हो सकता है, 4 हो सकता है, right? So what if I take mod 5 with this equation, meaning what if I say what is the remainder if I divide this equation by 5, right? So guys क्या मिलेगा उससे, कैन आई राइट, लेफ्ट साइड पे a0 मिलेगा, क्योंकि बाकी के तीनों टर्म्स तो डिविजिबल हैं 5 से. 5a1 is divisible, 5 square to a2 and 5 cube a3, सब में 5 का फैक्टर ही है, तो these are all divisible. So if I take modulus ले सकते हैं, congruent modulo लेते हैं with mod 5. So if I can say a0 is congruent to 136 mod 5, right? We just took mod 5 of the whole equation. So guys, since a0 is congruent to 136, which basically means what, a0 is congruent to 1, उसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, right? It's 136, 135 is a multiple, so 1 is the remainder. Now guys, very very important thing, देखो a0 की जो वैल्यू है, हमें क्या पता लग गया कि a0 जो है it gives you a remainder of 1 when divided by 5. तो बच्चों a0 क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, then 6 हो सकता है, 11 हो सकता है, and so on, that we know, right? But as I said, don't forget the equation or the condition that we have formed, that ai's are less than equal to 4. तो इनकी वैल्यू जो है गाइस ai की, तो a0 की वैल्यू भी 4 से तो छोटी है, इट इज लेसर देन 4 एंड स्टिल वी वांट कि उसको 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ जाए. दैट इंप्लाइज ओनली वन थिंग, दिस इंप्लाइज only one thing, that a0 has to be equal to 1.
नॉट ओनली कॉन्ग्रुएंट टू 1, इट हैज टू बी इक्वल टू 1 इटसेल्फ। तो ए नॉट की वैल्यू गाइज हमने यहां से पता कर ली है, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। हमने ए नॉट की वैल्यू फाइंड कर ली है, which takes us a bit closer to our goal, right? So a naught 1 है. Now what is the equation? Again, let us write this equation again. So we get 5a1 plus 25a2, right, plus 125a3 equal to what? a naught की वैल्यू गाइज आपने 1 डाल दी, उसको उधर ले जाएंगे तो क्या बन गया? 135. Now divide the whole equation by 5, we'll get a1. You know guys, so हमें थोड़ा आइडिया लग गया। अब क्या करना है, यही प्रोसेस बार बार करना है। a1 plus 5a2 plus 25a3. I have divided the whole equation by 5. तो गाइज 135 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? पहले 2 पे जाएगा 10, 35 is 7, so 27, right? So this is our equation now. a1 plus 5a2 plus 25a3 is 27. So guys, interestingly we can use this process again. We can again take modulo congruent modulo 5 के साथ mod 5 कर देते हैं. So on the left hand side we'll be left with 1 a1 because 5a2 and 25a3 will be divisible by 5, right? तो उसको हमने 5 से divisible हो गया, तो it will be congruent to 27 and which is congruent to 2, isn't it? एक ही स्टेप में कर देता हूं मैं। तो guys 27 को is congruent to further 2, right? So again by the similar logic guys, जो पहले किया था हमने, क्योंकि a1 a2 a3 इन सब की वैल्यूज a0 a1 a3 ये सब जो ai's हैं, इनकी वैल्यूज तो लेस देन 4 है, एंड बीइंग लेस देन 4 या 4 से छोटे होते हुए 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 कैसे आ सकता है? इट कैन ओनली हैपन इफ a1 is 2, ओनली पॉसिबिलिटी इज 2, राइट? तो a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई गाइस? यहां से 2 आ गई है। सो a0 प्लस a1 की वैल्यू 2 आ गई है, सॉरी a0 प्लस a1 की वैल्यू 3 आ गई है, 1 प्लस 2। नाउ वन मोर थिंग गाइस, नाउ अगेन सॉल्व इट। आई मीन टू से a1 को वापस पुट कर देते हैं गाइस, क्या मिलेगा? विल बी लेफ्ट विथ 5a2 प्लस 25a3 इक्वल टू 27 में गाइस जब हम इसमें a1 को 2 डाल देंगे, it will go to the right hand side and get subtracted. We're left with this equation, right? Effectively we have put the value of a1, right? So guys 5a2 plus 25a3 is 25. Now you can divide with this equation by 5 again and you'll see a2 plus 5a3 equal to 5, right? This is the equation. ओके वैसे तो गाइज हम यहां से भी सीधा सीधा इक्वेशन ढूंढ सकते हैं, इसके बाद हम फिर से यही प्रोसेस कर सकते हैं। नाउ यू कैन थिंक ऑफ इट लॉजिकली एज वेल, अदरवाइज इक्वेशन सॉल्व करके भी आप गाइज आंसर निकाल सकते हैं। देखो लॉजिकली मीनिंग व्हाट, a2 एंड a3 वी नो आर लेसर देन 4, राइट? लेस देन और इक्वल टू 4 एंड सम 5 आना चाहिए। तो गाइज सिंस 5 से डिविजिबल आ रहा है राइट साइड, तो आप देख सकते हो दैट a2 कैन नॉट टेक एनी वैल्यू, क्योंकि अगर आप a3 की कोई वैल्यू डालोगे, a3 की वैल्यू 1 डाल दी, उससे बड़ी नहीं डाल सकते। एक तो यू कैन नॉट पुट a3 एज 2 बिकॉज देन द सेकंड टर्म इटसेल्फ विल बिकम 10। तो राइट साइड 5 कैसे आएगा? सिंस a2 a3 आर बोथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव डाल नहीं सकते हो आप, और पॉजिटिव में भी आप a3 को 2 या 2 से बड़ा नहीं डाल सकते हो। सो द श्योर वैल्यू ऑफ a3 कैन बी 0 और 1, और जब आपने a3 को 0 डाल दिया a2 विल बी 5 विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। सो ओनली पॉसिबिलिटी हियर इज, you can see a2 has to be 0, only possibility is this, a2 has to be 0 and a3 has to be 1. This is the only possible combination, possible ही नहीं है, right? Although otherwise you can solve it by like this for a2 and a3 as well. तो guys since हमें पता है कि 4 ही वेरिएबल है, a0 a1 a2 a3, what is p of 1 then? Okay, I'll write here, what is p of 1 then? a0 plus a1 plus a2 plus a3 इक्वल टू 4 है ना? ऐसे भी सोच सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू 4। सो सिंस a0 और a1 हम निकाल चुके हैं गाइस, कितना है? 1 एंड 2 है। तो a0 और a1 की वैल्यू अगर हम 1 और 2 डाल देंगे, व्हाट विल गेट इज, आई विल राइट हियर, a2 प्लस a3 इक्वल टू 1 आ जाएगा।
right? So you can solve this equation and this equation as well. By simply subtracting, you'll get a3 1 and a2 as 0, right? So you're getting this solution in any case. Both ways I told you कि या तो equations बना के solve कर दो, two linear equations in two variables, right? In linear equation in two variables बना के भी solve कर सकते हो a2 and a3 में, या फिर आप number theory के logic से भी सोच सकते हो. Since they are integers, positive integers और non-negative integers, तो a2 0 होना पड़ेगा और a3 को 1 ही हो सकता है, राइट? सो दैट्स इट गाइस. यहां से हमें अब क्या हो गया गाइस, सारे के सारे इक्वेशन मिल गया, p ऑफ x मिल गया हमें. सो व्हाट इज इट, a नॉट की वैल्यू कितनी है 1, सो दैट इज 1. देन a1 इज 2, दैट मींस प्लस 2x, राइट? देन a2 इज 0, सो नो x स्क्वायर टर्म, प्लस a3 x स्क्वायर x क्यूब, राइट? सो दैट इज, वो भी वेरिएबल कोएफिशिएंट कितना है 1 है. सो दिस इज योर सिंपल क्यूबिक इक्वेशन गाइस. तो फाइनली जो p of x आ गया गाइस आपके पास, दैट इज अ क्यूबिक इक्वेशन, राइट? नाउ ऑल यू नीड टू डू इज फॉर p of 3, फाइनली गाइस आपको बस x को 3 डाल देना है. सो लेट्स रिप्लेस x as 3, विल गेट 1 प्लस 2 into 3 प्लस 3 क्यूब, यू विल गेट, राइट? तो कितना आ जाएगा गाइस, 1 plus 2 into 3 is 6 plus 1 7, 7 plus 27 gives you 34. That's it. So guys, the final answer to this question that you'll get will be 34. Final answer. So easy one. So right guys, this is also not that difficult at least. तो थोड़ा थोड़ा आइडिया बच्चों को लग सकता है एग्जाम में, ठीक है? बिकॉज नंबर्स आर स्मॉल एंड यू कैन गेट दिस आइडिया, राइट? सो अगेन नॉट द इजिएस्ट आई वुड से, बट यस 5 मार्कर्स के लिए इट इज ऑन द मीडियम साइड, राइट? यू कैन सी कि ऐसा क्वेश्चन डूएबल है अगर आपने थोड़ा नंबर थ्योरी पढ़ा हुआ है. एंड अलजेब्रा आल्सो, पॉलिनोमियल्स का यूज तो खास था नहीं गाइस, है ना? देयर वाज नो मच यूज, इट इज जस्ट कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है. सो मोर ऑफ नंबर थ्योरी क्वेश्चन, राइट? सो आई होप गाइस आप सबको समझ में आया ये क्वेश्चन एंड यू गाइस एंजॉयड इट. And with this video guys, finally we have completed the pre-RMO 2018 question paper. So guys, if you have not watched the previous videos, you can see and have a look at the previous questions, right? So do complete all the previous year questions guys. This is very very important. That's why I'm posting the videos of this series first, right? तो because this is one of the most important aspect कि guys आप previous year papers को solve करके ही जाना होता है if you are preparing for IOQM, right? तो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स करते हो, क्वेश्चंस करते हो, सो दैट यू गेट द आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस, किस कॉन्सेप्ट तरह के लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट? सो दैट्स इट गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय.